हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज +2 के लिए आगे सेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन चल रहा है उसमें आगे कर रहे हैं। इसमें हमारा +2 में चैप्टर 5, 6 चल रहा है। चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 वी आर डूइंग। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द model paper which sent by the CBSE board this year 2026 in October, November. So I want to say that according to that sample paper every year in the board exam similar questions are coming. 3 set always are there in the board exam, any set 1, set 2, set 3. So that similar questions we should do maximum from the chapter. Which concept from this chapter in that sample paper is there? Similar concept, same similar questions, many question, expected questions we are doing. 100% success, 100% our expectation to come these questions in the board exam 2026. So it is my, according to the 30-year experience, I want to tell you that important questions, and that questions from the chapter 6 we have started increasing decreasing concept. Before that, rate of change of function done. Now in chapter 6 this increasing and decreasing. I have started yesterday in that last video. Today is the lecture 12. On lecture 11 we have discussed the algebraical and the geometrical interpretation of the increasing and decreasing function. Graphically also I told you, geometrically means graph increasing and decreasing function on that interval. Everywhere any function if increasing, then it is for every domain point increasing. If any function in some part of the domain may be increasing, maybe in other part of domain decreasing, increasing, decreasing, maybe like this. So for the whole what interval I told you, I means a comma b open interval, in that interval it must be everywhere in the same phase. Same phase I told you, if x value increasing, then y also, x increasing, so y also increasing. Then increasing function, if x is increasing but y is decreasing, then y is decreasing, this, then I told you, you know. So and algebraically also I told you. तो नाउ आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक न्यू मेथड है और विदाउट एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली डायरेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू टेल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एनी गिवन इंटरवल. तो हाउ इट इज दिस मेथड? फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर increasing decreasing function on interval a comma b. This interval a comma b, on which interval we are going to tell increasing or decreasing for every point on this interval. It must be in the same phase. Same phase means that if first part, if f dash of x or x belongs to a comma b, any f dash I have put here open interval this a comma b, for every point on that derivative is greater than equal to 0. पॉजिटिव है 0 एंड पॉजिटिव, 0 एंड ग्रेटर देन 0 है. फॉर एवरी x belongs to a comma b, then this function is called the increasing function on interval ab. Easy, positive derivative on which interval?
and interval, it is the part of the domain. It may be the full domain or it may be the partition of the domain of that function on which we have to calculate, we have to find, we have to prove, we have to show the function given increasing or decreasing. So it is clear that 0 या greater than 0 आ जाए तो increasing हो गया. If derivative, second, if derivative of the function is less than equal to 0, यानी negative and 0, 0 and negative, so then it is decreasing function. नेगेटिव आ गया डेरिवेटिव किसी डोमेन पॉइंट पर, डोमेन पॉइंट पुट किया ऑन दैट पॉइंट, तो देन ये उस पॉइंट पर क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है नेगेटिव आने से. क्लियर? तो फॉर एवरी on that interval a comma b, it must be negative for every, each and every, then that interval. Otherwise, third part, if in any one interval asking increasing, decreasing, and in some part of that interval it is positive, in some part of that interval derivative value is negative, then we can say in the whole interval that a comma b, it is neither negative nor positive. Okay, if some part of that interval derivative value is greater than or equal to 0 and some part of that interval derivative value is less than or equal to 0, then we can say in the whole interval this neither increasing nor decreasing. Clear? So this concept. Okay, now we have to do the questions. Now important questions. Yes beta, this question number 1 on increasing, decreasing, important question. Find the intervals in which the function, given function fx equal to x power 4 minus x cube upon 3 is increasing or decreasing. So first derivative test I told you, so differentiate it. So solution, derivative of this function and f dash x, derivative of this x power 4, differentiate 4x cube, easy to differentiate, and minus x cube by 3, 1 upon 3 as it is, and then x cube का derivative 3x square and upon 3 as it is. Okay, 3 cancel, then implies f dash x is equal to 4x cube minus x square. तो x square कॉमन फैक्टर कर लिए इसके, x square कॉमन, देन 4x minus 1, derivative is this. So first for increasing, for fx, for fx be increasing function, be increasing, we know what we know कि ये डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Okay, so we can say what we know, this we know for increasing function के derivative f dash x must be greater than equal 0 for every. Okay, तो वो इंटरवल निकाल लेंगे. अब वो इंटरवल कहाँ है, ग्रेटर देन 0 पर हम इंटरवल निकाल लेंगे, कौन सा है वो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे. यहाँ डेरिवेटिव वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू 4x minus 1, दिस इज इक्वल टू 0. ओके बेटा, क्लियर? दिस हमारे पास है. अब ये हमारे पास है तो यहां से क्या निकल गया है, दिस इंप्लाइज, अब x इज इक्वल टू 0. ठीक है,
एक तो x 0 बन गया, और यहां से दूसरा 4x इज इक्वल टू 1, ये फैक्टर इक्वल टू 0 लिया, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 उधर चला गया एंड डिवाइड बाय 4, देन दिस इंप्लाइज x is equal to 1 by 4. तो ग्रेटर देन 1 by 4, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 0 ना हो ग्रेटर हो, तो दिस इंप्लाइज इंटरवल क्या बन गया, अब ग्रेटर देन 4, क्योंकि ये ग्रेटर देन 4, अगर यहां पर हम ग्रेटर देन 4 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 अपॉन 4, और ये 0 नहीं होगा, ये 0 ना ले, ओनली ग्रेटर ले, ओनली दिस, तो देन इंक्रीजिंग हो गया यो इंटरवल, दिस इंप्लाइज इंटरवल बिलोंग्स टू, या डायरेक्ट लिखो क्या कि x बिलोंग्स टू 1/2 पर तो 0 है, तो ओपन इंटरवल कर दो 1/4 एंड कॉमा इंफिनिटी ग्रेटर देन 1/4, ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट, इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग for decreasing what we have, हमारे पास क्या है डिक्रीजिंग के लिए, वी हैव के डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0, so this implies x square into derivative is x square into 4x minus 1, this should be less than 0, negative, so x should not be equal 0, okay, less than 0 चाहिए, तो 4x minus 1 less than 0, then x less than 1/4, अब less than 1/4 एंड बीच में 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 0 नहीं है बट लेस देन 4 है, तो नेगेटिव इनफाइनाइट से 0 तक एंड ओपन दिस एंड यूनियन, अब लेस देन 1/4 का मतलब हो गया 0 से 1/4, ओपन इंटरवल, ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1/4, this, okay, so this is your answer for decreasing interval, so on this interval decreasing and increasing interval your this, so we can write in the end, okay. Now similarly next question, yes beta, next question, question number 2, find the intervals in which the function f(x) is equal to log function है, log 1 plus x मिक्स है माइनस रेशनल फंक्शन 2x/2 plus x, ओके, माइनस दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो सॉल्यूशन, तो f' x, फर्स्ट फाइंड दैट
f dash x is equal to log of something 1 upon something, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, x is 1 plus x here, and into derivative of 1 plus x. The derivative of 1 plus x is 0 plus 1, into 0 plus 1 yani only into 1. Okay, minus u upon v. Okay, derivative of 2x is 2 into v 2 plus x minus u upon v formula minus derivative of 2 plus x, derivative of 2 plus x 0 plus 1 only 1, derivative of 2 plus x is 1 and into u 2x. Okay, this divided by v square means 2 plus x whole square. Simplify, then 1 upon 1 plus x minus 2 plus x whole square. तो एलसीएम ले लो, 2 plus x whole square and 1 plus x as it is, multiply LCM 2 plus whole square into 1 plus x. Okay, now 2 plus x square into 1, so 2 plus x square whole square. Okay, minus this LCM 2 plus x whole square तो मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स था तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे डिवाइड किया एलसीएम में कैंसिल, 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई तो माइनस होल ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू न्यूमरेटर सॉल्व किया, 2 टू जा 4, 4 प्लस 2x, 4 प्लस 2x एंड माइनस 2x. ध्यान दें, 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 इंटू x 2x प्लस 2x एंड माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल तो ओनली 4. क्लियर, तो इंटू 4 this. Clear? Then simplify, more simplify this. Factorize we have to do. Then f dash x greater than 0 for increasing. For increasing function. ओके, अब इसको ये डेरिवेटिव आपके पास है, सिंप्लीफाई अगर करें क्या बनता है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू जा 4x a square plus b square plus 2ab minus 4 multiply into 1 plus x minus 4 and minus 4x divided by minus 4x plus 4 is cancel, 2 plus x whole square into 1 plus x whole square. This, अब this greater than 0, this greater than 0, understand, so numerator should not be 0,
अदरवाइज जीरो हो जाएगा। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ग्रेटर देन जीरो है ही फॉर एवरी एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो वी कैन से, ठीक है, ये बच गया हमारे पास +4 -4 भी कैंसिल हो गया, ओनली एक्स स्क्वायर। तो वी कैन से एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है और अपॉन हमारे पास है 2 + x होल स्क्वायर एंड इनटू 1 + x। ये 1 + x ओनली, नॉट होल स्क्वायर, 1 + x ओनली। तो अब ये ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए ध्यान देंगे, होल स्क्वायर पॉजिटिव, बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स, एंड 2 + x होल स्क्वायर भी। तो ये तो हमेशा होल स्क्वायर, हमेशा ये तो ग्रेटर देन होगा ही, ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है। ये 2 + x में भी नेगेटिव फॉर एनी x, बट होल स्क्वायर पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर आल्सो पॉजिटिव। तो दिस पॉजिटिव के लिए x शुड नॉट बी जीरो एंड x शुड नॉट बी जीरो, पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो अब पॉजिटिव ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1/1 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x जो है अगर जीरो है तो 1 हो गया, ग्रेटर देन जीरो, 1/1। x जो है वो अगर यहां ये जीरो नहीं होना चाहिए, -1 हो गया x, तो ये जीरो हो जाएगा, शुड नॉट बी जीरो। तो 1 + x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज ग्रेटर देन जीरो। ये अगर ग्रेटर देन जीरो ना हो, जीरो से नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव होकर नेगेटिव, तो 1 - समथिंग नेगेटिव बन जाए, तो 1 और -1 के बीच में आना चाहिए। तो 1 + x ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन 1। एक तो पार्ट ये बना ग्रेटर देन जीरो में। अभी अगर 1 बन जाए ग्रेटर देन जीरो में, 1 ठीक है, ओके, तो ग्रेटर देन जीरो में ठीक है। इसके बाद अगर ये लेस देन जीरो में कहां तक जाएगा, x ग्रेटर देन 1, ओके। अब नेगेटिव पार्ट, अगर ये नेगेटिव है तो -1 से कम होना चाहिए, तो होना चाहिए 1 + x जो है वो शुड बी ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1। ये पार्ट -1 से ग्रेटर, x शुड बी ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर, नहीं नहीं, नो, तो नेगेटिव हो जाएगा फिर, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली दिस, ओके। तो व्हाट इज, अब ये कभी भी लेस देन, ये लेस देन जीरो नहीं बन सकता, नेगेटिव नहीं बन सकता। तो ये देख लो नेगेटिव कहां है, तो देन दिस इज योर ओनली इंक्रीजिंग, ओके। देन -1 से जीरो ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1, सॉरी, ये -1 उधर जाएगा, ग्रेटर देन -1। तो इंटरवल क्या बन गया, ग्रेटर देन -1 का मतलब
ग्रेटर देन -1, तो -1 to 0 ग्रेटर देन दिस, 0 नहीं है ये, दिस इंटरवल -1 से 0 एंड ग्रेटर देन -1, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 नहीं है, यूनियन 0 to इन्फिनिटी, ये इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ओपन इंटरवल 0 पर, 0 के अलावा ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, ओके, ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है, तो देन चूंकि ग्रेटर देन 0 से इंफिनिटी, this is positive, so increasing interval, so this implies fx is increasing on -1, 0 union 0, infinity. ओके भाई, इसके लिए तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही है फॉर एवरी एक्स, एक 0 को छोड़कर, तो इससे तो क्लियर हो गया, बस इस इंटरवल पर डिपेंड हुआ, इससे निकल गया आपके इंटरवल, ठीक है, डन। तो लाइक दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फाइंड द intervals in which the function fx is equal to x cube plus 1 upon x cube, x not equal to 0, is increasing first part, second part decreasing, दो पार्ट है इसमें, डिक्रीजिंग भी फाइंड करना है, इंक्रीजिंग इंटरवल। नाउ सॉल्यूशन, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो f डैश x इज इक्वल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x पावर -3, डेरिवेटिव x पावर -3 x पावर n -1, -3 -1 -4, this clear? Now this implies 3 common and then x square minus 1 upon x power 4. This, okay? So now for first part, for fx be increasing, okay, fx be increasing, this implies derivative must be greater than 0, okay, अब greater than 0 this, तो means 3 into x square minus 1 upon this must be, then here you can take like that कि x स्क्वायर कॉमन 9 पावर 6 बनेगा, कोई फायदा नहीं, पूरा फैक्टर कैसे कॉमन कुछ नहीं है, तो वी कैन से दिस x पावर 4 मीन्स मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो गई, माइनस
1 अपॉन x पावर 4 एलसीएम। इसके दो फैक्टर करें। हाँ यस बेटा, दिस x पावर 6 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 कैन बी रिटर्न into two factor. One is x power 4 plus x square plus 1. This and into x square minus 1. This you can check this product. This will be equal to x power 6 minus 1. Other will cancel here. Okay. So this is important point. So this is in this question greater than 0. We have to take this. Now this greater than 0 means this x square x power 4 plus 1 upon x power ये पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे 3 upon x power 4 into x power 4 plus x square plus 1, ये तो पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके, बट फॉर एवरी, सो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए दूसरा फैक्टर। ये तो पॉजिटिव है फॉर एवरी एक्स रियल नंबर, यानी एक्स नॉट बी 0, एक्स शुड नॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए बस। यहाँ तो यहाँ ये क्या बन गया इससे, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स वैल्यू ग्रेटर देन प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 का ग्रेटर में क्या होता है, यूनियन बनता है, तो पॉजिटिव वैल्यू बनती है, तो x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1 हो गया एक तो और एक हो गया लेस देन माइनस 1, तो माइनस इंफिनिटी से और माइनस 1 ओपन इंटरवल, दिस यूनियन greater than 1 means 1 to infinity, this यहां पर पॉजिटिव मिलेगा ये, ओके, दिस इज पॉजिटिव हेयर एंड नेगेटिव कहां होगा, लेस देन, तो दिस आंसर इंक्रीजिंग इंटरवल आंसर दिस एंड डिक्रीजिंग सेकेंड, अब ये लेस देन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 कहाँ होगा, ये बीच के इंटरवल पर आएगा, तो एक्स लेस देन प्लस माइनस 1। अब जब लेस देन होता है तो बीच की वैल्यू आती है 1 और माइनस 1 के बीच में, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से और 1 तक, तो -1 से 0, क्योंकि 0 नहीं है, यूनियन 0 से 1, दीज वैल्यू, इन पर ये नेगेटिव होगा, ओके, डेरिवेटिव,
So this show decreasing interval. So decreasing, okay. So decreasing on -1, 0 union ओपन इंटरवल 0 से 1। यहां पर ये फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग, और यहां इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो लाइक दिस you should take factors and greater and the less value you have to find. Okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and उन पेरेंट्स को भेजें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। ओके, 10th 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th एंड 12th का वीडियो भेज रहे हैं आजकल हम, और इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर दूसरी क्लास का भी वीडियो का लिंक होगा, जैसे 12th का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसको लिंक को खोल सकते हैं और 12th क्लास का सारा सिलेबस, 10th का सारा सिलेबस यू कैन सी, फुल सिलेबस, NCERT, फुल कंसेप्ट, एवरीथिंग यू कैन वॉच। उनको गाइड करना है कि आप पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करते ही वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेगा। ओके, एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।